Happy day to all children and back to our environment study class बच्चों. Today we'll study chapter 6 that is water is life. So we'll study about water. ये chapter में हम पानी के बारे में समझेंगे. We'll understand about the storage of water. कैसे पानी को store करते. We'll understand about lakes. We'll understand about step wells and we'll understand how people used to store the water. पहले कैसे store करते थे पहले के ज़माने में and how today we are using water. अब अभी हमें पानी कैसे मिलता है. So let's start and understand from this chapter number 6 about water बच्चों. Let's start from our textbook page number 51. What is it? Long long ago. बहुत समय पहले की बात है. क्या है? This is a picture of Khadi Sisar. Yes, you can see it is Khadi Sisar. Sar means a lake. Sar क्या होता है? It is a lake. King Khadi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people all around the lake. There were ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals and more programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care. Everyone took care to keep it clean. See बच्चों, अभी ये पैराग्राफ में हम क्या समझेंगे. See, ये क्या है? खाड़ी सीसर है. What is it? It is a lake. सार means क्या होता है? लेक होता है. ठीक है. And who built it? Yes, King खाड़ी. कितने लोगों के साथ मिलके? Yes, उन्होंने बहुत लोगों को इकट्ठा करके ये लेक बनाया. It was about 650 years ago. Yes, ये 650 years ago की बात है. मतलब 650 साल पुराना है ये. And the actual meaning of sar means lake. अभी इसमें क्या है? See, all around the lake there are ghats. We can see in the image कितने सारे घाट्स मतलब किनारे हैं, है ना. With the steps leading to the water, decorated verandas. See, पूरे ऐसे किनारे पे घाट पे क्या है? स्टेप्स, जैसे पानी में जा रहे. We can see it. Yes. फिर क्या है? डेकोरेटेड वरेंडास भी है. डेकोरेटेड वरेंडास भी हम इजीली देख सकते हैं. देन बड़े बड़े हॉल्स, लार्ज हॉल्स, रूम्स आर ऑल्सो देयर एंड मच मोर. बहुत कुछ है इसमें. पीपल कम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स फॉर म्यूजिक एंड डांस. येस, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ. फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं. म्यूजिक डांस के शोज होते हैं. इवन चिल्ड्रन कम्स to study in the school on the ghat. स्कूल के बच्चे भी इधर बैठ के पढ़ते हैं. यस, ये जो तालाब है सबको बिलोंग करता है. एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. सब ध्यान रखते थे उसको नीट एंड क्लीन रखने का. यस, एंड इट इज एवरीवन्स ड्यूटी. देन आगे क्या? See, rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into the another lake at a lower level. When that too flowed up, that is filled up, the extra water flowed into the next lake. See, it is amazing ना. और आगे पढ़ के समझते हैं. This way, all 9 lakes filled up. This rainwater could be used throughout the year. Today, Khadi Sisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those lake, those 9 lakes. ये जो 9 lakes है, in between there are some colonies and buildings come up. Now the water does not get collected in this lakes. Rainwater just flows away and it is wasted. See बच्चों, अभी ये पैराग्राफ में हम क्या समझेंगे? We'll understand about collection of rainwater in this खाड़ी सीसर लेक. सी, खाड़ी सीसर लेक कितना बड़ा है ना. बहुत बड़ा है. तो इसमें क्या होता है? जो बारिश का पानी है वो स्टोर होता है. यस, एंड इट इज स्टोर्ड एंड इट इज बिल्ड इन सच अ वे. ऐसे बनाया गया है. इट इज बिल्ड इन सच 9 लेक्स. एक तालाब भर जाता है तो दूसरा भर जाता है तो तीसरा तो चौथा. दिस वे दिस 9 लेक्स आर बिल्ड. एंड यू नो चिल्ड्रन, फिर पूरे साल ये बारिश का पानी
जो स्टोर किया जाता है ये लेक में, वो पूरे एरिया, वहाँ के एरिया के लोग यूज़ करते हैं, है ना अच्छी बात। यस, स्टोरेज ऑफ वाटर। नाउ बच्चों पेज नंबर 52। यस, थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी। अब ये अल-बिरूनी कौन है? लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. 1000 years ago पहले की बात है। क्या है? एक अल-बिरूनी करके पर्सन आया था। He was a traveler and he came to India. The place that he came from now is called उज़्बेकिस्तान। अभी जो वो जगह का नाम है वो है उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अल-बिरूनी carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. See, ये एक traveler है। अल-बिरूनी is a traveler who came from उज़्बेकिस्तान. Yes, उज़्बेकिस्तान से आया है। अभी वो जगह का नाम उज़्बेकिस्तान है। एंड अभी क्या वो बता रहा है कि उसने, वो ही इज़ अ ट्रैवलर, तो उसने ये पॉन्ड्स की सारी चीज़ें नोट डाउन की। हाउ इट इज़ मेड, कैसे ये बना है, और उसने ऐसे नोट डाउन किया सब चीज़ें जो उसकी कंट्री में नहीं है। एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटर्न, ये जो डार्क पोर्शन है ना, ही हैज़ रिटर्न फॉर अस, मतलब हमारे लिए लिखा है, इंडियन पीपल के लिए। वॉट ही हैज़ रिटर्न, चलो लेट्स अंडरस्टैंड इट। द people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see things, है ना। yes बच्चों, सी उन्होंने हमारे लिए स्पेशली ऐसी चीज़ें लिखी है जो हम यहाँ पढ़ के समझते हैं। yes, we can understand these things by reading. The people here are very skilled at making these ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with the iron rod is to build chabutras, that is raised platforms all around the lake. Between this there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate so there is less crowding. सी अल-बिरूनी क्या बता रहा है कि यहाँ के जो इंडिया के पीपल है बहुत स्किल्ड पीपल है, बहुत टैलेंटेड है। कैसे कि उनको सरप्राइज लगेगा जब वो वापस अपने कंट्री में जाके ये सब बताएंगे उनके लोगों को। यहाँ के लोग कैसे करते हैं, दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, ऐसे सारे रॉक्स को इकट्ठा करके उसमें आयरन रॉड फिट करते हैं एंड बिल्ड चबूतरास बनाते हैं। यस, विच इज रेज्ड प्लेटफॉर्म बच्चों ऑल अराउंड द लेक, पूरा जो सराउंडिंग लेक है ना उसको ऐसे बिल्ड करते हैं। यस, बिटवीन दिस देयर आर रॉज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस। इन बिटवीन कैसे होता है, एक रॉ बनी जाती है स्टेयरकेसेस की, कैसे, जिसपे गोइंग डाउन एंड कमिंग अप, ऐसे डिफरेंट स्टेप्स में बिल्ड किए जाते हैं। द स्टेप्स आर फॉर गोइंग एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, नीचे जाने के स्टेप्स भी डिफरेंट, ऊपर चढ़ने के भी स्टेप्स डिफरेंट। यस, सो देर इज लेस क्राउडिंग, इसलिए वहाँ बहुत कम क्राउड होता है। यस, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. You can see बच्चों, अल-बिरूनी ने तो पूरी एक किताब लिखी थी। Yes, on this lakes, मतलब ponds of India, ऐसी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने सब ये डिटेल नोट किए थे, how we prepared this lakes. Yes, now drop by drop, what is it? Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall बच्चों। Here it rains for only a few days in the entire year, then sometimes not even that much. The rivers here do not have water all around the year. See, राजस्थान में ऐसी जगह है besides जैसलमेर कि यहाँ बहुत कम बारिश होती है। एंड बच्चों यू नो, बारिश तो कम होती है पूरे साल में, कभी कभार तो होती भी नहीं है। द रिवर्स, यहाँ के जो रिवर्स है, डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द रियर, मतलब वो पानी उतना नहीं होता, स्टोर तो नहीं होता, बट पूरे साल चले उतना तो स्टोर भी नहीं कर सकते, और जो रेनी सीजन है वो टाइम पे भी वो लोग नहीं कर पाते स्टोर, ठीक है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं कि यहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं होती बच्चों।
सी पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस, बट सबको पता है यस कि एवरी ड्रॉप बूंद, एक बूंद भी पानी की बहुत प्रीशियस है. Lakes and johads were made to collect water. Water was everyone's need बच्चों. One and all came together in this work. Then be it a businessman or a laborer, some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and the bowdies, that is step wells. The soil of that area also became wet and fertile. See, इतनी बारिश कम होती है राजस्थान, जैसलमेर सिटी मतलब अराउंड जैसलमेर, फिर भी वहाँ के जो टाउन्स विलेजेस है वहाँ पानी कम नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पीपल, वहाँ के लोगों को पता है एवरी ड्रॉप इज़ प्रीशियस, बहुत प्रीशियस है एक बूंद भी बच्चों. यस, लेक्स एंड जोहार्ड्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर, बहुत सारे लेक्स बनाए गए थे. यस, एंड टू कलेक्ट वाटर, वाटर वॉज एवरी वंस नीड. यस, पानी सबकी ज़रूरत है. एंड वन ऑफ ऑल केम, सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो बिजनेसमैन हो कि लेबरर हो, इट इज़ एवरी वंस ड्यूटी. सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इन टू द ग्राउंड, कुछ पानी ऐसा होता था बारिश का हो, कैसे होता था कि इट सोक्ड, पानी सोक हो जाता था. एंड रीच्ड ग्राउंड, ग्राउंड में चला जाता था. एंड रीच्ड द वेल्स, कैसे soaked into ground and reached the wells and bowdies, that is step well. मतलब क्या होता था ये wells मतलब कुओं, bowdies that is step well, जिसमें कुओं ही but it is steps, there are steps in it. We'll understand with one figure. The soil of the area also became wet and fertile. जो ground पे पानी मतलब जो पानी गिरता है जो लेक पे, एंड सोक्ड इनटू द ग्राउंड, वो पानी सोक कर लेता है एंड वेल्स एंड बाउडीज में चला जाता है. तो क्या होता है वो जो एरिया है दैट इज ऑल्सो बिकम्स वेट एंड फर्टाइल, एकदम गीली गीली मिट्टी रहती है, एकदम फर्टाइल रहती है. फर्टाइल मतलब जहाँ पे हम अगर प्लांट ग्रो करेंगे तो इट विल ग्रो ईजीली. यस, एकदम फर्टाइल लैंड हो जाता है. सी इन द इमेज, यस, इट इज हाउ इट इज गिवन. यस, see one lady is given, she is cooking मतलब she is in kitchen and some tank है ना, कुछ टैंक पानी जैसा है, उसमें बकेट है ना. every house it is system to collect a rain water, each and every house, हर घर में एक सिस्टम होता है रेन वाटर को कलेक्ट करना. इट इज़ वन ऑफ दिस. बट पहले तो हमें ये सोचना है कि सी ये जो रेन वाटर है रूफ से, बारिश टेरेस पर से सीधे ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पे कैसे आएगा. सी यू कैन सी इन द इमेज वन पाइपलाइन इज गिवन, एक पाइपलाइन दी है ना. इट इज कनेक्टेड विथ रूफ, टेरेस से नीचे टैंक तक उसको कनेक्ट किया है. तो वाटर फ्रॉम द यस रूफ कम्स टू, यस इट कम्स टू टैंक, ऐसे बिल्ड किया है तो पूरा पानी नीचे टैंक में स्टोर होता है. यस बच्चों, सी इट इज seen easily ना, you can see in the image. Yes, so this way water is stored. Yes, in every house, हर घर में ऐसा होता है बच्चों. Now see, have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep. See बच्चों, next is, have you ever seen a step well? कभी step well देखा है? Look at the picture, see the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps get down several stories deep? अभी ये इमेज से हम समझते हैं कितना डीप है ना, कितना स्टेप्स डीप है. एंड इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, ऐसे पानी खींचने से बेटर है कि पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर. वहाँ स्टेप्स दिए गए, हम वो स्टेप से उतरकर पानी ले सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स, इसीलिए उसको स्टेप वेल्स बोला जाता है. सी यू कैन सी इन द इमेज, यस नीचे स्टेप्स दिए गए हैं और ऊपर चढ़ने के भी स्टेप्स दिए गए हैं. इट इज़ द रीज़न कि इसकी वजह से क्राउड भी नहीं होता है ना. सी कितना मस्त किया है ना डिज़ाइन, ऐसे लगता है डिज़ाइन बट यस इट इज़ a step well. Yes. Now बच्चों, see next topic is customs related to water. ये क्या होता है? See even today people get water from very old lakes. आज भी पुराने लेक से पानी मिलता है. धाराज, step wells and nalas. Many customs and festivals are related to water. At some places whenever lakes get filled,
this filled up with the rain water. The people gather around the lake and celebrate. अभी क्या होता है, पहले भी होता था और अभी भी होता है. What is it? अभी भी पुराने लेक से पानी मिलता है, धारा से, स्टेपवेल से एंड नालाज में से भी पानी मिलता है बच्चों. Many customs and festivals are related to water. बहुत सारे customs and festivals है जो पानी को relate करते हैं. Yes, what is it? जब भी क्या होता है सम प्लेसेस, जब भी लेक्स वगैरह फिल हो जाते हैं ना, एकदम भर जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो वी यूज टू सेलिब्रेट इट. यस, एंड एकदम से फेस्टिवल होता है, उसको हम फेस्टिवल जैसे मनाते हैं उसको. सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इमेज. सी व्हाट इज इट? एक ब्राइड है. ब्राइड मीन्स एक दुल्हन है. क्या कर रही है? After getting married, she has come to new village and she goes to the spring or the pond in the cities. One can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine this without water? See, ये अभी क्या बता रहे हैं? ये एक ब्राइड है, ये नई दुल्हन है. जब वो शादी करके दूसरे विलेज में आती है तो क्या होता है? ये सबसे पहले तो वो पूजा करती है. शी वर्शिप्स द वाटर. उसके घर में जो, उसके घर के पास जो पॉन्ड है, यू कैन सी, यस, ये एक पॉन्ड है, एक धारा बह रही है, उसको वो वर्शिप कर रही है, पूजा कर रही है. ये एक ट्रेडिशन है, कल्चर है बच्चों. आज भी सिटीज़ में ऐसे देखने को मिलता है. यस, अभी एक ऐसी बात है, कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? पानी के बिना हम रह सकते हैं क्या? कैन यू इमेजिन? नो, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. मतलब पानी हमारी ज़रूरत है. नॉट इवन ओनली अस, सिर्फ हम नहीं, सबकी ज़रूरत है पानी, है ना? यस. सी व्हाट इज इट? इट इज़ द इमेज गिवन ऑन पेज नंबर 57 बच्चों. आज की कंडीशन, दिस इज हाउ वी गेट वाटर. कैसे हमें पानी मिलता है? जल बोट. जल बोट, वाटर टैंकर. हमारी जगह पे समवेयर इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवेयर. कई जगह पे कैसा होता है, जल बोट का टैंकर आता है पूरे दिन में 1-2 बार. देन वी गो विथ अवर बकेट्स एंड फेच वाटर. ऐसे होता है. एंड इन द सेकेंड इमेज यू कैन सी, येस, व्हाट इज इट? सी वन स्टेप वेल. एक कुआं दिया है ना, हम उसमें से पानी खींच के भरते हैं, है ना, जो हमारे घर के पास है. बट अभी वो पानी सूख गया है तो हमें थोड़े आगे पे एक और कुआं है, वहाँ से पानी निकालना पड़ता है. देन व्हाट? वी गेट वाटर एट अवर हाउस फॉर आवर हाफ एन आवर. ठीक है, हमारे घर पे ही पानी आता है आधे घंटे में, बट आधे घंटे के लिए. बट क्या होता है? यस, समटाइम्स इट इज़ डर्टी. ये डर्टी भी होता है, फिर भी हमें यूज़ करना पड़ता है, हम टैंक में फिल कर देते हैं. यस, देन व्हाट? सी वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग लाइक दिस. मेरे घर में तो पूरे दिन पानी आता है. ये तो मैं बहुत शान से बोलती हूँ, मेरे घर में तो रोज़ पानी आता है, 24 आवर्स आता है. बट क्यों आता है? बिकॉज मैंने मेरे टैंक में सेव करके रखा है. अदरवाइज कैसे आएगा? यस, पूरे दिन तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना. इफ टैंक में पानी नहीं है तो क्या कंडीशन होगा? पानी नहीं आएगा. बट मैंने मेरे टैंक में ऐसे स्टोर करके रखा है लाइक दिस. सो पूरे दिन मेरे घर में पानी आता है. देन वन ऑफ द कंडीशन इज सी हैंडपम्प, है ना. कितना इंटरेस्टिंग है, वो तो आपको भी अच्छा लगता होगा. कभी कभार ऐसे हैंडपम्प देखा होगा और यू स्टार्टेड यूजिंग इट, है ना. कभी मम्मा को बोलते होगे ना कि मम्मा मैं यूज़ करके देता हूँ, मैं भर के देती हूँ, है ना. लाइक दिस हैंडपम्प भी यूज़ होते हैं. देन सी अभी भी ये कंडीशन इट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर. ये जल बोट से डायरेक्ट पानी आता है, हमें पाइपलाइन फिट किया जाता है. येस, वी हैव कनेक्शन ऑफ जल बोट. येस, वहाँ से एवरी डे वी गेट वाटर. हाफ एन आवर, 1 घंटा ऐसे पानी आता है. देन वन मोर इज बोरवेल लाइक दिस, है ना. ग्राउंड से सीधे बोरवेल लगाते हैं और पानी को खींचते हैं बच्चों. देन द नेक्स्ट इज वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ लाइक दिस. ये बहुत मस्त होता है, एंजॉय करते हैं. बट जो भरने जाता है उसको ही तकलीफ होती है, इतना सारा कैनाल से भर के आना पड़ता है. यस, कैनाल से भी पानी मिलता है. सो ये सारे कंडीशंस अप्लाइड है. दैट इज़ वन ऑफ द कंडीशन इज. इसमें से 1-2 कंडीशन आपको भी अप्लाई हो सकती है. आज की कंडीशन ये है बच्चों कि हमें कैसे पानी मिलता है ना. सी व्हाट इज इट?
यस, इट इज़ अ वाटर बिल। अभी ये वाटर बिल क्या होता है? एक तो पानी नहीं मिलता है, हमें स्कैर्सिटी होती है पानी की, फिर मैडम बता रही है वाटर बिल। यस, ये वाटर बिल है। वी हैव टू पे फॉर वाटर, हमें पे करना पड़ता है। और कहाँ से आता है, क्या है ये सब, उसमें सब मेंशन किया होता है बच्चों कि किसके नाम का है, उसका रेफरेंस नंबर होता है, कस्टमर का नंबर होता है, फिर एड्रेस होता है, कितने महीने में कितना पानी कंज्यूम किया है, एवरीथिंग्स आर मेंशन्ड इन इट। सी विल अंडरस्टैंड दिस विथ सम क्वेश्चन आंसर्स बच्चों। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम? ये कौन सी ऑफिस से आता है ऐसे बिल, वाटर बिल? दिस बिल हैज़ कम फ्रॉम जल बोर्ड। जल बोर्ड से आता है बच्चों। द प्लेस वेयर विल लिव, जहाँ जो सिटी में हम रहते हैं वहाँ जल बोर्ड होता है, वहाँ से ऐसे बिल आते हैं वाटर के। देन डू यू गेट वाटर बिल एट योर होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंड। आपके घर में ऐसे पानी का बिल आता है, पता करो कहाँ से आता है। यस, वी गेट वाटर बिल एट होम एज वी लिव इन गुजरात एंड सो वी गेट अवर बिल फ्रॉम गुजरात जल बोर्ड। मैं गुजरात में रहती हूँ तो मेरा बिल कहाँ से आएगा? हाँ, गुजरात जल बोर्ड से आएगा। मतलब अभी क्या होता है, अभी तो एवरी सिटी हैज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो हम लोगों को बिल वहाँ से भी आता है। मतलब गुजरात जल बोर्ड इज़ द स्पेसिफिक, हमारे स्टेट को क्या होता है, गुजरात नाम है तो गुजरात जल बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। देन डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? हाउ मच रुपीज़? द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनी। सी, कितना पे करना पड़ता है, डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट कॉलोनी में डिफरेंट होता है। तो आपको पता है क्या? सी, इट इज़ मेंशन इन दिस बिल, कितना पे करना पड़ता है? यस, वी हैव टू पे फॉर वाटर अबाउट ₹300 पर मंथ। हमें 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है एवरी मंथ, लाइक दिस, है ना। देखो इसमें मेंशन भी क्या होता है, ये जो वाटर बिल है ना बच्चों, उसमें नाम, एड्रेस, कंज्यूमर नंबर, कस्टमर नंबर, हाउ मच अमाउंट टू पे, पूरा डिटेल दिया होता है। दिस वे वी हैव टू पे वाटर बिल विथ टू सो एंड सो, मतलब जल बोर्ड को हमें पे करना पड़ता है। इट कैन बी डन। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर to people of different areas. They ask the elders about the water arrangements in their times. They rebuild the old lakes and johars and also beautiful buildings, new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. See, पहले कैसा होता था, पहले के ज़माने में ऐसे लोगों को हेल्प किया जाता था जिसको पानी भरने में दिक्कत होती थी। एक ग्रुप होते थे लाइक तरुण भारत संघ जो दारकी माई को हेल्प करते हैं। मतलब दारकी माई को उनसे हेल्प मिली, इससे हम समझते हैं पढ़ के। दारकी माई शी लिव्स इन द विलेज इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बच्चों। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well bachcho for the animals. In the summer when the wells dried up, they have to leave the village. Oh, see what is the condition, what was the condition at that time. Darki Mai heard about the group of दिस ग्रुप, मतलब भारत संघ के बारे में, तरुण भारत संघ के बारे में उन्होंने सुना और उन्होंने वहाँ से हेल्प मांगी। Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk. They have started earning more. See, ये एक रियल स्टोरी है। यस बच्चों, दारकी माई इज़ वन ऑफ द लेडी जो बहुत मेहनत करती है अपने पूरे दिन में, मतलब पूरे दिन में उसको क्या एनिमल्स के लिए, उसके घर में सब लोगों के लिए कितना सारा पानी चाहिए। तो पूरी, कभी तो क्या होता था पूरी रात उसको कुएं से पानी सींचना ही पड़ता था। तो उसने एक बार ये सुना भारत संघ, तरुण भारत संघ के बारे में, देन उसने वहाँ से हेल्प मांगी। तो वहाँ वो लोगों ने क्या किया, वहाँ का जो पुराना एक लेक था उसको रीबिल्ड किया और वहाँ पानी आना शुरू हो गया बच्चों। एंड दिस सॉल्व देयर प्रॉब्लम, उसको फिर दिक्कत नहीं हुई और फिर बहुत सारा पानी एनिमल्स के लिए भी आया और फिर एनिमल्स के दे पीपल गेट मोर मिल्क, वहाँ ज़्यादा फिर पानी भी आने लगा तो एनिमल्स मतलब पीपल गेट मोर मिल्क एंड दे स्टार्टेड अर्निंग मोर। सो दिस वे दारकी माई का प्रॉब्लम वॉज सॉल्व। ऐसे आज भी होता होगा बच्चों। सी मैनी पीपल्स आर देयर टू हेल्प अस। So students, with this will end our chapter. What we studied in this chapter? We studied the most precious thing for us is water.
Then historians like Al-Biruni of Uzbekistan praised India 1,000 years ago बच्चों for its wise use of water by making lakes and step wells. उसने तो पूरी किताब लिखी है ना. Then even rain water was collected in खाड़ी सीसर लेक. हमने खाड़ी सीसर ऑफ जैसलमेर लेक के बारे में समझा और we understood how the water storage मतलब पानी, रेन का पानी कैसे 9 लेक्स में स्टोर होता है ना. It was so wonderful lake ना, दिखने में भी कितना ब्यूटीफुल था. And how people use there, how it was used, area surrounding and all. Then lakes, johars and bawdis provided water to make the soil fertile. क्या होता था, lakes build किए जाते थे, johars that is bawdis, step wells that is kuwa and all was built. Many festivals and customs are related to water in India. India में आज भी there are many festivals, customs are followed for this water related in India. Yes. Then today we use different methods to collect water, but unfortunately some of our methods are wrong and we waste water. Yes, it is a true and sad story है ना, which we have to improve this. Yes. Then we must remember that water on earth is for everyone and we should not waste it. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारे लिए भी है और सबके लिए भी है. इवन वी कैन यूज एंड एनिमल्स कैन यूज, है ना. सो इन दिस लेसन इट वॉज ऑल अबाउट वाटर. With this we'll end our chapter. Hope you understood this chapter.